Mr. Vikramaditya Motwane, Mr. Madhu Mantena. Madhu ji, please एक बार आप भी आ जाए स्टेज पर. And Mr. Shivashish Sarkar. जो इतनी देर से हम एक घंटे से जो लूप पर सुन रहे हैं और जो भी हमने 4-5 टीजर देखे हैं और जो भी ट्रेलर देखा है, the one big thing in my personal opinion that's held everything together, the music of the movie. Can I invite up on stage Mr. Ram Sampath? This is all Mr. Ram Sampath. This is all Ram's doing. Mr. Sampath, you're fantastic. Sir, आपसे सवाल है मेरा कि जब ऐसी एक मूवी आप बना रहे हैं जो वाह इतने सारे माइक्स एक साथ, जब एक ऐसी मूवी आप बना रहे हैं, एक ऐसी मूवी पे जब आप काम कर रहे हैं, तो अनुराग ने आपको आकर क्या बोला कि वो क्या चाहते हैं ऐसे म्यूजिक से? बिकॉज जैसे कि मैंने कहा, टीजर्स जितने भी लोगों ने देखे अभी तक वो म्यूजिक से ज्यादा डर गए हैं, नवाज की हरकतों से ज्यादा वो म्यूजिक सुन के ज्यादा डर गए. नहीं, वो हो ही नहीं सकता. नवाज is just too scary. But I gotta tell you, I don't think I've ever had this much fun on a film. And I don't think I've worked on a better film. So, Anurag, thanks. It's just been a dream. It's been an unbelievable ride. दूसरी बात क्या है कि I think the most special thing about the film is the fact that I think the performances are just unbelievable. I mean, Mukesh ji, you've changed idlis for me forever. That's an inside joke. Yeah. Clearly. Yeah, and I'm South Indian, so imagine what has happened to my life. What has Mukesh ji done to you? You have to watch it. You have to watch it. It's unbelievable. It's a very, very darkly funny film as well. And मुझे बहुत खुशी हुई कि बहुत सारे लोग मतलब ट्रेलर को देख के हंस भी रहे थे, because that's exactly what the film is about. And the music has been a lot of fun. So I'm just delighted. अनुराग सर, एक आखिरी सवाल before we open it to Q&A from the media. जो छोटे-छोटे टीजर्स रिलीज किए हैं आपने, उनके पीछे क्या आइडिया था? एक सेटअप है घर का, एक रेस्टोरेंट का, एक ऑटो का. उसका आंसर बहुत अच्छी तरह से दो लोग दे सकते हैं. एक है वासन बाला, जिन्होंने सारे टीजर्स बनाए हैं, जो इस फिल्म के को राइटर भी हैं, और वो प्लीज स्टेज पे आ जाए. वासन बाला is here. वो हमारी फिल्म के को राइटर भी हैं, और दूसरे रंजन सिंह हैं. ये लोग में बैठ के जाएंगे. रंजन जी स्टेज पे नहीं आएंगे, आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए. Vasan is the best person to answer that question. Hi Vasan, hello, good evening. Hi, how's it going? Good, very good. अब आप बताइए, चलिए यही सवाल आपसे कि जो 4 छोटे-छोटे टीजर्स आए, घर का, रेस्टोरेंट का, रिक्शा का, और चौथा कौन सा था? There was another one. घर का. सिलेंडर वाला जो मेरा पर्सनल नाइटमेयर है जिंदगी में. तो इनके पीछे क्या आइडिया था वासन? The idea was Ranjan's. I was jobless, so he said direct something. मुंह छुपा के बैठे वहां पर. So it was his idea. I just gave me a camera and asked me to shoot. He acted also in one of the. Yes, Yeah. वो रेस्टोरेंट वाले सी. रंजन सिंह अपनी शक्ल नहीं दिखाएंगे किसी को खड़े होके. He's just sitting there and giggling like a schoolgirl. So cute. All right, ladies and gentlemen, the cast and crew of Raman Raghav 2.0. I just want to invite Jay Oza also. He's my cameraman. He's there somewhere. He always disappears. He likes to disappear. Behind the camera. And he's first time looking like a normal human being. I think पहली बार नहाया भी है. चलिए, अब आपके हाथ में कैमरा माइक पकड़ा ही दिया है, तो जरा ये बताएं, अनुराग कश्यप की विजन को स्क्रीन पे उतारने में मतलब what is that process like? To me, मतलब अनुराग सर के साथ काम करना मतलब ऐसा होता है लाइफ में एक बार कुछ काम करो बोलते गंगा ना है, वो वाला था नवाज सर और अनुराग सर के साथ. So yeah, it's a big learning process. It was great fun working. काफी organic था the whole process of filming. So yeah, I just kind of followed what he had to tell me and I just kind of did what I did. एक आपस में secret एक कोड वर्ड था, इंग्लिश और देसी. So ऐसा होता है, मतलब जब हम लोग कोई खतरनाक सीन करते थे तो लाइटिंग कैसे करनी है, इसको इंग्लिश. और जब हम लोग लाइट सीन करते थे तो देसी. All right, here we have it. We have the cast, we have the crew, we have the writer, the director. A huge round of applause. Can we hear it for Raman Raghav 2.0? Everyone, right at the back. Everyone sitting at the back. अभी हमारे जो फोटोग्राफर भाई हैं, अगर वो शांत हो गए तो हम यहाँ तस्वीरें खींच सकते हैं. And if there's any questions, if anybody has any questions, I think there will be a mic going around, and we can ask questions if any. And I'm going to get off the stage now.
हाय माय नेम इज अनूक है। नवाजुद्दीन सिद्दीकी से मेरा सवाल है कि कभी आप मांझी बनते हैं, कभी आप वासीपुर में आते हैं, कभी तो ये जो किरदारों के लिए जो आप तैयारी करते हैं, लाइक अभी यहाँ पे एक साइको का एक किरदार था, तो वो प्रोसेस क्या है, क्योंकि हर फिल्म से आप निखरते हैं। मेरा प्रोसेस मोस्टली जो है डायरेक्टर पे बहुत डिपेंड करता है, क्योंकि वो जैसा, और कभी कभी क्या होता है कि कैरेक्टर खुद बताता है कि ऐसे तैयारी करनी चाहिए। बहुत सारे कैरेक्टर ऐसे होते हैं जिनके लिए कोई खास प्रिपरेशन की जरूरत नहीं होती, और वो ऑन द स्पॉट जो डायरेक्टर बताता है आपको उस तरीके से करते चले जाओ। मेरी अच्छी बात यह है कि मैं बहुत ही मोटी बुद्धि का हूँ, तो जो मुझे डायरेक्टर ने बताया वो उसको करने की कोशिश, ज्यादा कुछ सोचना वोचना इतना होता नहीं है। अनुराग, कोई दिवाली के पीछे भागता है, कोई गणतंत्र दिवस पे, कोई स्वतंत्रता दिवस, सबकी अपनी डेट्स फिक्स हैं। आप क्या कांस के लिए फिक्स करते हैं, या आपकी रिलीज डेट क्या? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमारी रिलीज डेट जो है, हमारी फिल्म कब तक रेडी होती है उसके ऊपर डिपेंड करता है, और अक्सर हमारी रिलीज डेट सेंसर के ऊपर भी डिपेंड करती है। विकी, आपसे भी जानना चाहेंगे, क्योंकि वासीपुर में आपने बताया कि 10th AD थे, तो आपने क्या सीखा ऑन सेट, क्योंकि अनुराग भी वहाँ मौजूद थे और नवाजुद्दीन सिद्दीकी भी वहाँ पे मौजूद थे। आलोक भाई, मैं तो यही सीख रहा था फिल्म कैसे बनती है। मुझे तो कुछ नहीं पता था, मैं कभी सेट पे नहीं गया था उससे पहले। तो फिल्म कैसे बनती है, डायरेक्टर कैसे होते हैं, एडीज क्या होते हैं, प्रोडक्शन टीम क्या होती है, एक्टर्स कैसे प्रिपेयर करते हैं, वही सब सीख रहा था कि एक ग्राउंड लेवल ट्रेनिंग की फिल्में कैसी बनती हैं और इतने सारे लोग साथ में मिलकर फिल्म कैसे बनाते हैं। मैं बस वो सीखने गया था, एंड आई फील लकी कि वो सीख मुझे वासीपुर जैसे एक जर्नी से मिली है, बिकॉज बहुत स्पेशल फिल्म थी, बहुत दिग्गज एक्टर्स थे, बहुत कुछ सीखने को मिला, और टीम बहुत अच्छी थी, फ्रेश थी। तो आई फील ब्लेस्ड कि ऐसी शुरुआत रही मेरी इंडस्ट्री में, बीइंग एन एडी ऑन वासीपुर। नवाज, ये कहना ज्यादा नहीं होगा, हाइट डज नॉट मैटर, और आप छोटा पैकेट बड़ा धमाका हो, और आपने ये प्रूव कर दिया यार कि हीरोइन की जरूरत नहीं है। हीरोइन की यू आर द हीरो एंड हीरोइन। मैं तो क्या कहना चाहेंगे, और सब प्रेम क्या दे रहे हो आप इसमें? मैं तो शुरू से चाहता हूं कि मेरी कोई हीरोइन हो। तो जब वो नहीं मिली तो मैं खुद ही हीरोइन वाला पार्ट में खुद ही कर। चलो नहीं, और सब प्रेम क्या बांट रहे हो आप इसमें? सब प्रेम बस आप आए देखें, सब प्रेम प्यार से देखें। And Anurag, you're lucky. Usually what happens when the film flops, people, I mean, everybody points at the director. But for Bombay Velvet, you've been lucky, nobody pointed at you. Why is it that when the film does not do well, director को point out करते हैं? No, I think when a film fails, it's 100% the director's fault. It's nobody's fault. So if Bombay Velvet didn't work, it's entirely my fault. Because the director is the only one who has the power to say no. And बहुत जगह जहाँ मुझे मना करना चाहिए था, या नो करना चाहिए था, या स्टैंड लेना चाहिए था, मैंने नहीं लिया, तो गलती सिर्फ मेरी है। जब फिल्म अच्छी होती है तो उसमें कंट्रीब्यूशन सबका होता है। You're being humble. No, I'm not. It's a fact. It's a fact. Anybody will tell you that. Rupesh. Hi, this is Karmik Verma here from ikarmik.com. मेरा सवाल नवाजुद्दीन सिद्दीकी से है। नवाज सर, congratulations, पूरे मर्डरर लग रहे हो आप, और जो पोस्टर है वो भी बहुत ज़्यादा डरावना है। मेरा सवाल ये है कि अभी कुछ दिनों पहले अनफॉर्चुनेटली आपकी सोसाइटी में कुछ प्रॉब्लम्स हो गए थे, और काफ़ी बड़ा मामला हो गया था, पुलिस तक भी बात पहुंच गई थी। कहीं उनको डराने के लिए तो आपने ये रोल वगैरह नहीं लिया है? नहीं, फिल्म तो खैर मैंने उससे पहले बन चुकी थी फिल्म, तो थोड़ा सा कुछ रह गया होगा तो पता नहीं। लेकिन अब हालात कैसे हैं वहां पर? अभी बहुत अच्छे हालात हैं, सब सारा जो है वो कोर्ट में चल रहा है बाकायदा, और बहुत सप्रेम चल रहा है। Okay, the next question is for Vicky. Vicky, can you tell us how do you choose your roles, or are the roles choosing you right now? अभी तक मैंने जितनी फिल्में की हैं सबका ऑडिशन दिया, तो मैंने किसी को चूज़ नहीं किया है, उन फिल्मों ने मुझे चूज़ किया है, एंड आई एम हैप्पी कि ऐसी जर्नी रही है,
ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैंने 10 फिल्में में से एक किया यार ये फिल्म मेरे लिए सही है, तो वैसा कभी हुआ नहीं। मुझे ऑडिशन के लिए बुलाया गया। हाँ जी। विकी ने अभी तक 3 ऑडिशन दिए तो तीनों क्रैक किए बाय द वे। Congratulations, Chawda ji. You just won an award day before yesterday. For what? Tassel award मिला है सर आपको? हाँ सर मिला। ये क्या है टैसल अवार्ड? Okay, finally, Anurag, the question is to you. Of course, we all know that Bombay Velvet did not do well, but what are you were talking about some stands right now. Were there other situations in this movie that you had to take stands for? No, it's not that. It's like what happens is you're making a film and you start out making a film and there's a film that you're going to make. And midway the process kind of changes. You forget why you started, in the first place, why you wanted to make the film. So वो जो process है. And sometimes we get into, a lot of times we need to put our foot down and say, no, this doesn't go with the film. And we give in to a lot of pressures. We go on a back foot. So I think my biggest constraint was, जब क्या होता है कि एक फिल्म का बजट बहुत बड़ा हो जाता है और वो इतना ज़्यादा बड़ा हो जाता है कि आपके कंट्रोल के बियॉन्ड है, उसका प्रेशर इतना ज़्यादा हो जाता है कि आप बैकफुट पे आ जाते हो। तो वो जो बैकफुट पे आना होता है वो सबसे बड़ी गलती होती है। वो आप मतलब कितना भी बड़ा बॉलर क्यों ना हो, वो कोहली को सामने जाके खेलना पड़ता है। तो जब पीछे जाते हो ना धीरे धीरे हिट विकेट हो जाते हो, तो वैसा हो गया था कुछ।